Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. So today I will teach you a new topic from the chapter electricity. But firstly, I will recap the topic Ohm's law, which we did in my last video. So according to the Ohm's law, I explained in my last video कि according to the Ohm's law, potential difference is directly proportional to the current, and we remove the proportionality, then V is equal to RI. So here the letter R is the new letter for us, that is the R is for resistance. So today I will explain the topic resistance from the chapter electricity. So firstly, what is the meaning of resistance? So its meaning is hidden in this term, that is resistance means to resist. To resist means to oppose, to obstruct or stop. Resist, to resist. So to resistance is the property and the ability of the conductor to resist the flow of current. So what is the meaning of the resistance? So meaning of the resistance is it is the ability of the conductor to resist, to oppose, to obstruct, any word आप यहाँ पे लिख सकते हो, to oppose the flow of electric current. Flow of electric current. What is the meaning of resistance? Resistance is the ability of the conductor to oppose or to resist the flow of current. So in science having a symbol, in physics mainly having the symbol for the term. So this term resistance is denoted by, means its symbol जिससे हम इसको denoted करते हैं, that is R. R is the symbol used for the resistance. And again here is the unit for the resistance. For resistance R letter is from where? That is related to the Ohm's law. जब हमने Ohm's law में proportionality को remove किया था तो वहाँ से हमारे पास जो है वो letter आया था, that letter is R. Resistance, so its unit is Ohm, because we know that Ohm's law given by the Sir George Simon Ohms. For honor के लिए हमारे पास जो यहाँ पे unit है इसका SI, unit of resistance is Ohm. क्लियर. सो ओम्स यूनिट के लिए भी हमारे पास जो है वो सिंबल है, तो इस सिंबल जो है वो हमें कैसे हम इसको डिनोटेड करते हैं, तो ओम्स लॉ के लिए हमारे पास एक ग्रीक लेटर है, दैट ग्रीक लेटर इज ओमेगा. तो ओमेगा जो है वो हमारा एक, ये ऐसे हम इसको बनाते हैं ऐसे करके और इसे हम बोलते हैं ओमेगा. ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है. ग्रीक letter is omega. Clear. ओमेगा बोलते हैं हम इसको. This one is the unit of the symbol for the SI unit of resistance is Ohm. Clear. Now these are the information related to the resistance. Resistance की define, ability of the conductor to resist the flow of current, and symbol denoted by R. SI unit Ohm, and symbol for the SI unit, that is omega, and this one is the Greek letter. Then I will start the factors. On what factors resistance is affect?
So on what factors does the resistance of the conductor depends? तो कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे पास जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? क्लियर? तो हमारे पास फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं? क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स हम एक्सप्लेन करते हैं अंडर दिस टॉपिक। हमारे पास फर्स्ट फैक्टर रहता है जहाँ पे कि हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि जो नेचर होता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो हमारे पास जो कंडक्टर का नेचर है मटेरियल का, वो हमारे पास यहाँ पे रहेगा फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देन हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को। देन हमारे पास थर्ड टॉपिक है इसमें फैक्टर, दैट इज द लेंथ, की लेंथ इफेक्ट करती है, इफेक्ट ऑफ लेंथ। एंड फोर्थ वन इज द इफेक्ट ऑफ एरिया, इफेक्ट ऑफ थिकनेस हम इसको बोल सकते हैं, थिकनेस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दीज आर द 4 factors that affect the resistance of the conductor. Firstly, I will explain the nature of material of the conductor. So हमारे पास वी नो दैट कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स हमारे पास प्योर मेटल्स हो सकती हैं, हमारे पास एलॉयज हो सकते हैं, और हमारे पास जो है वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर? सो जो हमारे पास ऑल प्योर मेटल्स होती हैं, तो प्योर मेटल्स जो है वो क्या करती हैं, वो इंक्रीज करती हैं रेजिस्टेंस उनकी, जब हमारे पास उनका जो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में हमारे पास रहेगा कि हमारे पास जो नेचर है मटेरियल है कंडक्टर का वो इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सिल्वर है, तो सिल्वर वी नो दैट बेस्ट कंडक्टर है, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी का, तो बट उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ही लो है। तो लो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी किस में आती है? बेस्ट कंडक्टर्स के लिए उनकी लो रेजिस्टेंस होगी। लेकिन हमारे पास जो अलॉयज है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नेनिन है, तो ये हमारे पास कुछ अलॉयज है। यू नो अलॉयज क्या होते हैं? जब हम कुछ मेटल्स को, नॉन मेटल्स को मिक्स करके एक अच्छी जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो मटेरियल को बनाते हैं। क्लियर? तो वो हमारे पास अलॉय जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास एक गुड हीटिंग एलिमेंट्स के लिए हम उनको यूज करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। सेकेंड है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है ये भी इफेक्ट करता है कंडक्टर को। क्लियर? तो जैसे कि ऑल हमारे पास प्योर मेटल्स है, जो प्योर मेटल्स हमारे पास ऑल हैं उनका क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होएगा। लेकिन अगर हम अलॉयज की बात करें तो उसमें लिटिल बिट, स्लाइटली, थोड़ा सा, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके अंदर जब टेम्परेचर राइज होता है तो वो स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो उसका रेजिस्टेंस जो है वो राइज करता है। लेकिन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है इस केस में उनमें ये अपोजिट हो जाता है। जैसे कार्बन फिलामेंट लैंप है हमारे पास, उसमें भी क्या होता है, इस इफेक्ट से थोड़ा अपोजिट रिएक्शन होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप है, उनमें जब टेम्परेचर राइज होता है तो हमारे पास जो उसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? लेकिन जो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है इसके हम जो है वो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, बिकॉज इक्वेशन से हमारे पास जहाँ पे एक और टर्म नई निकल के आएगी जो नया टॉपिक होगा आपको पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। तो हम यहाँ पे लेंगे लेंथ को। क्लियर? तो जो लेंथ है हमारे पास वो क्या करती है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो ये हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है इसका वो क्या रहेगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मींस लेंथ इंक्रीज होएगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होगी। क्लियर? सो लेंथ विल इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। और फॉर एग्जांपल कि अगर हम लेंथ जो है वो हाफ लेते हैं,
तो रेजिस्टेंस भी हाफ इंक्रीज होगी। अगर हम इसकी लेंथ को कंडक्टर की को डबल कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। मतलब हाफ लेंगे तो हमारे पास हाफ रेजिस्टेंस होएगी और डबल लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास फोर्थ टॉपिक फैक्ट था जो इसका फैक्टर, वो क्या है, थिकनेस। थिकनेस मींस एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि अगर हम हमारी जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो लेंथ में होता है उससे अपोजिट होता है, मींस हमारे पास जहाँ पे जो रेसिप्रोकल में आएगा, मींस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मींस जो आपके पास थिन वायर होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू थिक वायर। क्लियर। तो इसलिए हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास जहाँ पे इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास जहाँ पे हो जाएगा कि अगर हम किसी वायर की सेम लेंथ में रखेंगे उसको, और अगर वो थिन है और अगर वो थिक है, ठीक है, थिक में हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको थिकनेस दे देंगे उसकी। तो अगर ये इन वायर्स की दोनों की सेम लेंथ है और सेम लेंथ के बाद उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थिकनेस है, उनमें डिफरेंस है, तो हमारे पास जो थिन वायर होगी, क्लियर, मीन्स वो हमारे पास जो है वो थिन वायर जो है वो हमारे पास उसका रेजिस्टेंस हाफ होएगी। तो हमारे पास एरिया जो है वो थिन होगा तो रेजिस्टेंस हाफ होएगी, और हमारी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है वो क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो जहाँ पे एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो जाएगी। मींस जहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज करने पे वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर। और अगर हम एरिया को हाफ रखेंगे तब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर। तो जहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट रहेगा कि अगर हम एरिया जो है वो हाफ ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, और अगर हम एरिया को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। मीन्स ये पॉजिटिव में चलेगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, we will combine these two equations। क्लियर। तो हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं। कंबाइन किया, लेफ्ट साइड हमारे पास r है और राइट साइड हमारे पास है L/1/a मीन्स a। क्लियर। अब हमारे पास जहाँ पे जो है वो ये फॉर्मूला बनता है, r is directly proportional to length and inversely proportional to the area। और अगेन हम जो फिजिक्स में करते ही आ रहे हैं कि हमें प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से रिमूव करेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, और इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हम रो लगाते हैं, सिंबल दिस इज कॉल्ड रो। और ये एक नया टॉपिक हमारे पास बन के आता है, दैट इज द रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। तो इसको हम डिनोटेड करते हैं रो से। तो हमारे पास जहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली हमारे पास इज इक्वल टू हो जाती है रो L अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डेरिवेशन हम यूज करते हैं अगर हमें जो है वो रेजिस्टेंस को फॉर्म करना है, या फिर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी भी फॉर्म करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है कि हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं अगर, तो ये रो इज इक्वल टू r से a मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा a अपॉन l। ये तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा रो रेजिस्टिविटी के लिए, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस r इज मल्टीप्लाई विद एरिया अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस का यूनिट था इसमें हमारे पास आंसर क्या आता है, ओम्स में। क्लियर। तो ये हमारे पास ओम्स में आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें पता है रेजिस्टेंस किस में होती है, ओम्स में, ओम्स लिख दिया। और एरिया क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। क्लियर। और लेंथ क्या होती है, मीटर में। यहाँ पे हमारा 1 मीटर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो यूनिट हो जाएगा ओम्स मीटर। तो ये ओम्स मीटर जो है वो हमारा किसका यूनिट हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का। क्लियर। तो रेजिस्टिविटी का हमारा ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट दैट इज ओम्स मीटर। और रेजिस्टेंस का क्या था हमारे पास, ओम। क्लियर। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, यहीं पे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ में आपको, वो हमारे पास है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओनली मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो जो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर होती है और जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर होती है। जो इन दोनों में डिफरेंस है, ये ना टेम्परेचर पे, ना लेंथ पे, ना एरिया पे, किसी पे इफेक्ट नहीं करता, इसका कोई फैक्टर नहीं है। इसका एक ही फैक्टर है कि ये किस पे डिपेंड करती है, ये हमारी डिपेंड करती है मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये मटेरियल की, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बट इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो ये हमारे पास टू टर्म्स थी जो हमारे ओम्स लॉ के बाद आगे हमारे लेटर्स जो है वो फॉर्म्ड हुए। वन इज रेजिस्टेंस एंड दैट सेकंड वन इज रेजिस्टिविटी, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टिविटी। क्लियर? ये है हमारे पास, और हम इसे बोलते थे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है, एबिलिटी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज द रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय रो। और इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो फॉर्मूला फॉर्म्ड होते हैं जे फर्दर न्यूमेरिकल वर्क के लिए। तो हमारे पास आर के लिए एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म्ड हुआ था ओम्स लॉ में कि अगर हम इसको रीअरेंज करें तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें करंट गिवन है, तब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर रो निकालना है तो आपका रीअरेंज हो जाएगा। यूनिट मैंने आपको बता दिया कि सेम जैसे आपका यहाँ पे यूनिट ओम था, तो जब हमने आर का ओम फिल किया और एरिया अपॉन लेंथ किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ कि एरिया का हमें पता है, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, और लेंथ के लिए हम मीटर लेते हैं, कट हो गया और हमारे पास फॉर्मूला, इसका यूनिट जो है ऐसा ही, दैट इज ओम मीटर। सो आई होप you like my video. Please like, share and subscribe.